إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا. اور تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ نعت میں 2 اشعار پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حسان خان کو. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمارے میڈیا کے تمام دوست جو کیمرہ کھڑے ہیں وہ بھی آپ کا بات دے رہے ہیں. سلامت رہے. اور اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جسٹس ہدایت مقبول باقی صاحب ایکسیلنسی چیف منسٹر سندھ تشریف لا چکے ہیں اور میں چیف منسٹر سندھ جناب جسٹس مقبول باقی صاحب کی اجازت سے تقریب کا آغاز کر رہا ہوں. FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ان کے نام کے ساتھ ایسے جڑا ہے کہ اب اگر کوئی تھانے میں جا کے FIR کٹوائے تو ذہن میں فہیم صدیقی کا چہرہ آ جاتا ہے. اور فہیم صدیقی بھائی آج کل ایک بڑے گروپ 24 نیوز کے ساتھ منسلک ہے بحیثیت بیورو چیف. کہتے ہیں کہ زندہ رہتے ہیں اور باسل صدیقی کی صورت میں یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے. جب بھی باسل کا نام آتا ہے تو ذہن میں چند لمحوں کے لیے وہ وقت وہ سانحہ ضرور ایک یاد کے طور پر ابھرتا ہے کہ کیا ہوا تھا 10 محرم کو 2009 میں جب یوم عاشور کے جلوس میں دھماکہ ہوا. اور یقیناً یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سامنے اپنے لخت جگر کی لاش پڑی دیکھیں, اپنی جان سے پیاری بھانجی کی لاش پڑی دیکھیں. لیکن جب میں ان سب بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ان میں مجھے باسل اور انزلنا نظر آتے ہیں. اور باسل ایک بہت اچھا پلیئر تھا جس کی یاد میں ہم ہر دفعہ ہم پروگرام کرتے ہیں. باسل کو ہم ہمیشہ بھولے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فہیم بھائی کو جب بھی ہم کہتے ہیں وہ منع نہیں کرتے. اور جتنے بھی اسکولز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں, خاص کر ڈفرینٹ اسکول جتنے بھی ہیں, خاص کر اسپیشل اسکول یہ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہم نے کلب چیمپئن بھی کی جو نیکسٹ ڈے تھی, وہ بھی بڑی کامیابی طریقے سے ہوئی. تو میں تمام لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص کر فہیم بھائی کے لیے اور آج کے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے زوردار تالی ہونا چاہیے. آج کے ہمارے چیف گیسٹ وزیر اعلیٰ صاحب, تھینک یو سر. جناب محترم فہیم صدیقی صاحب پریزیڈنٹ کراچی یونین آف جرنلسٹ, جناب ماسٹر محمد صادق صاحب, جناب طلحہ فاروقی صاحب سیکرٹری گورنمنٹ آف سندھ, السلام علیکم. ودیگر شرکا, بچوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں باسل صدیقی شہید کے والد سینئر صحافی فہیم صدیقی, اس چیمپئن شپ کے چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ماسٹر محمد صدیق اور سندھ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اختر میر کا شکریہ ادا کرتا ہوں
जिन्होंने एक शहीद के नाम से मौसूल चैम्पियनशिप में मुझे मदऊ किया। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़िल सिद्दीकी शहीद के नाम से मुसलसल ये 14वीं ताइक्वांडो चैम्पियनशिप इस बात का सबूत है कि शहीद मरते नहीं और ज़िंदा रहते हैं, ताअब ज़िंदा रहते हैं। बाज़िल सिद्दीकी 2009 में यौम आशूरा के जुलूस में होने वाले बम धमाके के 48 शोधा में शामिल हैं, लेकिन आज सिर्फ इनका ही नाम नहीं लिया जा रहा, बल्कि इनके नाम के साथ इन 18 दीगर शोधा का भी जिक्र हो रहा है जो दहशतगर्दी के इस वाक़े में हमसे बिछड़ गए। लेकिन यकीन करें वो हमसे बिछड़े नहीं हैं, हमारी यादों में हैं, हमारे दिलों में है, हमें उनसे अक़ीदत है, हमें उनका एहतराम है। और ये तकरीब इस बात का मुँह बोलता सबूत है। मैं ख़ुद भी दहशतगर्दी का शिकार हो चुका हूँ, और जब 26 जून 2013 को सिंध हाई कोर्ट के आते हुए बंस रोड के करीब मुझ पर हमला हुआ, मेरे साथ मौजूद 9 अफराद शहीद हो गए, जबकि 15 शदीद ज़ख्मी हुए, और मैं खुद भी बहुत शदीद ज़ख्मी था। मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी, और ये शायद इसीलिए थी कि मैं इस मुल्क के इस सूबे के अवाम की खिदमत कर सकूँ। बतौर निगरां वज़ीर आला सिंध ने ये कोशिश की कि इस मुख्तसर से अरसे में अवाम की बेहतरी के लिए जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँ। बाज़िल सिद्दीकी जैसा मुझे यहाँ बताया गया है, वो सिर्फ 6 साल की उम्र में शहीद हुए, और वो इस वक्त ताइक्वांडो के एक अच्छे खिलाड़ी थे। इनके नाम से हर साल बाकायदगी से इस चैम्पियनशिप का इनकाद किया जाना खेल के शोबे की न सिर्फ एक बेमिसाल खिदमत है, बल्कि इससे इस शहीद का नाम भी ज़िंदा है। और मुझे ये कहने दें कि इन 14 सालों में इस चैम्पियनशिप में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों बाज़िल पैदा किए हैं। बेशक खेल कोई भी हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है। ये हमें ज़हनी, जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रखता है, और ताइक्वांडो को सिर्फ एक खेल नहीं, ये हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है। इस चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ उम्र के सैकड़ों बच्चों ने भी हिस्सा लिया, और इनकी महारत ये बताती है कि वो आज इस काबिल हैं कि अपने सेल्फ डिफेंस कर सकें। बाज़िल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैम्पियनशिप आज इस शहर की शनाख्त बन चुकी है। इंटर क्लब्स ही नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में इंटर स्कूल मुकाबले इस बात का भी सबूत हैं कि स्कूलों में इंतसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जा रही है। और आजकल के मोबाइल और टैब की दुनिया में बहुत अहम ये है और ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड से निकाल कर ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों में डालें जिनमें हिस्सा लेकर वो माशरे के कारआमद शहरी बन सके। बाज़िल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में खुसूसी बच्चों को भी अहमियत दी जाती है। इसके नतीजे में ये मुमकिन हुआ है कि इस चैम्पियनशिप से सामने आने वाला टैलेंट आज दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। जापान में स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड मेडल जीते, और इन 5 खिलाड़ियों ने इस चैम्पियनशिप में भी पहली बार अपने जैसे बच्चों का सामना किया। और यहाँ से होने वाली हौसला अफजाई के बाद इन्होंने अपने खेल को मज़ीद निखारा और पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया। ये बच्चे हमारी एक काबिल फ़ख्र हैं, और हुकूमतों को इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए। आखिर में इस बात से पता लगा कि कौन जीता और कौन हारा। मैं इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों को मुबारकबाद नहीं करता हूँ, चाहता हूँ कि वो इस खेल का हिस्सा बने,
चैम्पियन शिप का हिस्सा बनने में चाहूँगा कि आप सब इसी तरह इस खेल से जुड़े रहें ताकि इस मुल्क के अमन अमान हुकूमत और डेमोक्रेटों को ये पैगाम दे सकें कि हम डरने वाले और डरने वाले कौम नहीं हैं, हम हर हाल में इसका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत